بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حق چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں ایک نئی ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والا ہوں، پر ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل اس وقت انڈیا میں ایک واقعہ درپیش آیا ہے جس کی وجہ سے پورے انڈیا میں اس وقت سٹرائکس ہو رہی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ انڈیا کے اسٹیٹ کرناٹک کے کالجز میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ مسلمان لڑکیاں حجاب کے بغیر کیمپس میں داخل ہوگی، مطلب حجاب کے ساتھ وہ لوگ کیمپس میں انٹر نہیں ہو سکتی، اور جو مسلمان لڑکی کیمپس میں حجاب کے ساتھ انٹر ہوگی اسے کیمپس سے نکال دیا جائے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن دراصل RSS کے گنڈوں اور مودی کی وجہ سے دیا گیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ مسکان نام کی ایک لڑکی جو کہ 12ویں جماعت کی طالب علم تھی، اپنے کیمپس میں اسائنمنٹ جمع کروانے آئی، جبکہ RSS کے گنڈے جن میں کچھ آؤٹ سائڈرز تھے اور کچھ اس کیمپس کے سٹوڈنٹس تھے وہاں پہ گیٹ پہ موجود تھے۔ تو انہوں نے مسکان کو روکا اور مسکان کو کہا کہ آپ حجاب کے ساتھ کیمپس میں انٹر نہیں ہو سکتی، اور مسکان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی، کبھی جے شری رام کے نعرے اور کبھی حجاب اتارو کے نعرے شروع کر دیے۔ مسکان نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے RSS کے گنڈوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور RSS کے گنڈوں کے سامنے اللہ اکبر کے نعرہ لگاتے ہوئے کیمپس میں انٹر ہو گئی اور اپنا اسائنمنٹ جمع کروا دیا۔ RSS کے گنڈے مسکان کا پیچھا کرتے رہے اور مسکان کے پیچھے نعرے بازی شروع کر دی، کبھی جے شری رام کے نعرے، کبھی حجاب اتارو کے نعرے، اور کچھ لوگ کافی گندے اشارے اور گندی زبان استعمال کر رہے تھے۔ اس کے بعد RSS کے گنڈوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کالج کا گھیراؤ کر دیا۔ کیمپس میں موجود مسلمان لڑکیوں نے مسکان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر دیا، اور انہوں نے بھی RSS کے گنڈوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے اسٹیٹ میں مسلمان عورتوں نے مسکان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر دیا، اور RSS کے گنڈوں کے خلاف پورے اسٹیٹ میں احتجاج شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر RSS کے لیڈرز نے RSS کے گنڈوں کو جمع کر کے مسلمان عورتوں کے خلاف کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ مسلمان عورتوں کے خلاف آپ لوگوں نے بھی احتجاج کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ پورے ہندوستان میں اس وقت RSS کے گنڈے مسلمان عورتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور مسلمان عورتیں اپنے حق کے لیے RSS کے گنڈوں کی غنڈہ گردی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ اس معاملے پر کرناٹک کے ہائی کورٹ میں کیس درج ہو گیا۔ کرناٹک کے ہائی کورٹ کے جج نے مسلمان عورتوں کا کیس لڑنے والے وکیل سے کہا کہ قرآن میں مجھے ایسی کوئی آیت دکھا دے جس میں حجاب یا پردے کا کہا گیا ہو۔ اس پر وکیل نے قرآن کی ساری آیتیں بتا دی اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی دکھا دی۔ پر جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پورے انڈیا کو RSS کے گنڈے ہی کنٹرول کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ مودی RSS کا ہی ممبر ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جج اپنا کیا فیصلہ سناتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ کرناٹک کے ہائی کورٹ سے آئے گا وہی فیصلہ انڈیا کے تمام سٹیٹس میں بھی امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، جس طرح آپ لوگ کو پتا بھی ہے جس طریقے سے بابری مسجد کو شہید کیا گیا، جس طریقے سے کشمیر میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کیا گیا، تو یہ کوئی پہلا واقعہ انڈیا میں نہیں ہو رہا۔ پر فی الحال انڈیا میں مسلمانوں کی غیرت تھوڑی سی جاگ گئی ہے اور انہوں نے RSS کے گنڈوں کے خلاف پرزور احتجاج شروع کر دیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ یہ ویڈیو میں نے دین ٹیچر کے نام سے ایک چینل سے اٹھائی ہے، اوریجنل ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ لوگ ویڈیو وہاں پہ بھی جا کے لازمی دیکھیے گا۔ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا میں دنگے فسادات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو کے اینڈ پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना जुल्म करना ये नहीं लिखा, लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं. वो धर्म के प्रचार पर जहाँ पर देखिए मुसलमान ज्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज्यादा है तो मुसलमान के ऊपर. तो धर्म क्या है और ईश्वर ने अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म का नहीं किया, ये मेरा क्वेश्चन है. भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है. भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है. जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है. ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है. कुरान में लिखा है सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम. अल्लाह सुब्हाना व तआला के नजदीक एक ही दीन सही है और वो दीन है इस्लाम. अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक. अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए. इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा. वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक. इसे कहते हैं इस्लाम. आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग ऑफ विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन. और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे. और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया. तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया. फिर चंद साल के बाद 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया. इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे. लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी. और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी. और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेगी. और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे. तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए. वो कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए. फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाअल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा. मैं मानता हूं आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में. किशनगंज का नहीं है, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है. उसके बावजूद इस किशनगंज ये मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ. धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया. एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहाँ दंगे फसाद नहीं हुए. तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है. और आप खुश नसीब है कि मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही. मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी. सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर. कश्मीर में देखो क्या हो रहा है. मीडिया आप देखेंगे
मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दिन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर, भगवान, अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए। और इसका मैं ब्लेम डालता हूं हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूं हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाअल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते। लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते। इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरखास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाअल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। जी तो नाजरीन, तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखी, तो डॉक्टर जाकिर नाइक का क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने का बेसिकली मकसद ये था कि जिस तरह आप लोग को पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया में पैदा हुए और इंडिया में ही पले बढ़े, और इंडिया को जितना करीब से डॉक्टर जाकिर नाइक ने देखा है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने इतने करीब से देखा होगा। क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक काफ़ी अरसे से इंडिया में अमन के लिए भी काम करते रहे और इस्लाम के लिए भी जद्दोजहद करते रहे वहाँ पे। तो बेसिकली डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस वीडियो क्लिप में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दंगे फसाद मजहब को लेकर इंडिया में होते हैं और इनके पीछे क्या वजूहात है और कौन करवाते हैं। तो एक तो उन्होंने पॉलिटिशियंस का कहा, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने कह दिया था कि इंडिया में फसादात के पीछे आरएसएस की गुंडागर्दी है, और जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसके पीछे काफी पॉलिटिशियंस भी होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मोदी आरएसएस का एक बहुत बड़ा मेंबर है, और आरएसएस की ताकत की वजह से ही और आरएसएस के मंसूबे के तहत मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। आरएसएस की गुंडागर्दी की वजह से ही बाबरी मस्जिद शहीद हुआ, गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, कश्मीर में मासूम बच्चे, औरतें और बूढ़ों का कत्लेआम हुआ। जैसा कि आप लोग को पता है कि इंडिया की तकरीबन 7 लाख के करीब फौज सिर्फ कश्मीर में तैनात है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीरों पे जुल्म कितना हो रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर पे किस इंतहा का जुल्म हो रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।